Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the structure of atom as we have discussed in the previous video. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था आपका अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर. सो आज हम दो थेरीज को डिस्कस करेंगे इसमें that was proposed about the structure of atom. As we have discussed the Rutherford theory in the previous lecture, so the remaining two theories are Bohr atomic theory and the Planck quantum theory. हाँ जी, इन दो theories का हम लोग मैक्स प्लैंक की जो theory है उसका सबसे पहले introduction पढ़ेंगे, then mathematical form of the quantum theory, then the second theory that we have today Bohr atomic theory. इससे related जो भी मेन इसके मेन postulates आ जाते हैं, इसकी मेन क्वेश्चंस वगैरह इससे जो भी रिलेटेड आ जाते हैं वो डिस्कस करेंगे. देन एट द एंड वी विल हैव द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू थ्योरीज लाइक बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड द रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी. सो वी विल स्टार्ट विद द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. Why we are starting first the Max Planck quantum theory? Because this theory was used as foundation by the Bohr to propose the structure of model structure of atom. So therefore we are going to discuss first Max Planck theory. The Max Planck theory was proposed in 1900 and it was proposed to explain the nature of electromagnetic waves. It was proposed to explain that how electromagnetic waves behave. So like we will discuss that electromagnetic waves are also a form of energy. ठीक है. So how that energy is reaching to us, हमारे पास ये जो energy आ रही है वो किस तरह से आ रही है. Either it is coming to us in the continuous manner or either it is coming to us in the discontinuous manner. So that behavior of the light or electromagnetic waves was related by the explained by the Max Planck. So the main postulates are there. The first postulate according to this revolutionary theory that energy travel, according to this theory, that energy travels in a discontinuous manner. Energy travel in a discontinuous manner. Discontinuous manner में किस तरह से travel कर रही है, मतलब discontinuous manner में travel कर रही है तो उसका कोई way होगा ना. What is that way, that how it is traveling to us? उसका जो मेन वे है वो यही आदत है कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इट इज़ कमिंग टू अस. हाउ इट इज़ कमिंग टू अस? इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स. छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिसकी फॉर्म में एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो रेडिएशन को इमिट या ऑब्जर्व करती हैं जब, तो उसमें कोई भी बॉडी है. ठीक है. वैसे इस थ्योरी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है. तो मतलब ये कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, बॉडी जो है जब वो कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, ये इमिट कर रही है, तो उसको वो किस फॉर्म में कर रही है? इन द डिसकंटिन्यूस मैनर. डिसकंटिन्यूस मैनर का क्या मतलब है? दैट इट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. उन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के लिए हमने क्या टर्म यूज़ की है? क्वांटा की टर्म यूज़ की है. क्या टर्म यूज़ की है? क्वांटा की टर्म यूज़ की है. हाँ जी, देखिए, एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली, rather it is emitted or absorbed in a discontinuous manner and in the form of wave packets. Each wave packet or quantum is associated with a definite amount of energy. The quantum of the energy is often called as a photon. अच्छा, फोटोन जो है, क्वांटम का जो वर्ड है वो आप जनरली यूज़ कर रहे हैं. जनरली यूज़ करने से मतलब ये है कि आप कोई भी वेव है या कोई भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है या अब्जॉर्ब कर रही है, जो भी कर रही है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स कर रही है अब्जॉर्ब. तो उसके लिए मैंने उन डिस्क्रीट पैकेट्स को जो नाम दिया वो मैंने क्या नाम दे दिया? उसको मैंने नाम दे दिया क्वांटा का. लेकिन जब आप बात कर रहे हो विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग, it is traveling in the form, also traveling in the same way in the form of discrete packets of energy. But in that case, that discrete packet will be considered as a photon. What it is considered? It is considered a photon.
अब बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो जो क्वांटा आ रही है, जो फोटोन आ रही है, इसकी एनर्जी कितनी है, हाउ मच एनर्जी डज इट हैव। इसकी जो एनर्जी है डेट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। more will be the if there is more frequency means there will be the more energy that is associated with the quanta or photon of light. So if we talk about the mathematical form में आप इसको कह देंगे, हाँ जी, इसको लिखने का तरीका जो है, सबसे पहले कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है न्यू के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, न्यू के। दैट वी विच इज़ रिटन इन द, जिसके ऊपर एरो आ रहा है उसमें आप देखिए वी आ रहा है, इसको न्यू पढ़ते हैं। न्यू क्या शो कर रहा है आपको, फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। दैट कांस्टेंट इज एच। चूंकि ये प्लैंक की थ्योरी है तो इस वजह से इसको प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है जी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। इफ़ द यूनिट्स आर चेंज देन अगेन द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट विल आल्सो चेंज। अच्छा, आपके पास ये जो इक्वेशन लिखी गई है दैट इज़ अ ब्रीफ इक्वेशन। मतलब इसमें आप जब बात करते हैं आगे से, ये जो न्यू है, जो फ्रिक्वेंसी है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी जैसे आपको पता है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पॉइंट पर सेकेंड, ये डिपेंड कर रही है, या जो न्यू है वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर लैम्डा के। किसके इक्वल होता है, सी ओवर लैम्डा। सी इज़ रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड द लैम्डा इज़ बेसिकली द वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन मेन जो चीज़ है इसके अंदर वो यही आ जाती है कि डेट ई इज़ इक्वल्स टू एच न्यू इसमें जो फ्रिक्वेंसी आ रही है एंड एच इज़ द मैक्स प्लैंक कांस्टेंट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एट द एंड वी हैव द एप्लीकेशन। इसमें मैंने बताया हुआ कि एनर्जी जो किस तरह से आ रही है, ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर इज एनर्जी एसोसिएटेड विद दैम। Wave number mean again we are using the same to frequency. The relationship of energy, frequency, wavelength, wave number about the photon was accepted by the scientists and it was also used by the Bohr in his atomic model. हाँ जी, अब यहाँ पे हम लोग सम अप करते हैं पहले अपनी इस थ्योरी को। सबसे पहली बात तो ये कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, मैक्स प्लैंक ने। कब प्रपोज की थी, इन द 1900 एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. He said that the transmission of energy takes place in a discontinuous manner. Discontinuous manner से क्या मतलब है, that is traveling in the form, या जो भी इसकी ट्रांसमिशन हो रही है, वो absorb हो रही है या emission हो रही है, वो किस फॉर्म में हो रही है, in the form of discrete packets of energy. उन discrete packets of energy को उसने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, क्वांटा का। क्वांटा जो जनरल टर्म यूज़ हो रही है डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के लिए, और अगर आप इसको स्पेसिफाई करते हैं टू द लाइट, विजिबल लाइट, देन वी विल यूज़ द टर्म फोटोन। सो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या किया है, मैथमेटिकल फॉर्म ये शो कर रही है दैट एनर्जी एंड द फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच अदर। मोर फ्रिक्वेंसी मीन मोर एनर्जी ऑफ द क्वांटा, या मोर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द क्वांटा एंड एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.626 into 10⁻⁻34 joule per second. So here is the little bit representation of the quantum theory that is showing that the waves are passing and you can see that the dotted lines are there. The purple and the yellow is a wave, but the dotted line with the third one is showing that there are small packets or discrete packets of energy to whom we are seeing in the photon, as we are giving you the example of the light. Okay, so next we will start the next theory which is related to the atomic structure, that is the Bohr atomic theory. Bohr atomic theory जो थी, इसने tried to remove the defect in the Rutherford model. चूँकि रदरफोर्ड जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। मतलब ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन यू द बिहेवियर दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, वो स्टेशनरी है या वो मूव कर रहा है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर एटॉमिक थ्योरी आई थी। बोहर एटॉमिक थ्योरी जो आई थी उसने ज़्यादा अपना फोकस जो था वो इसी बात पे रखा था कि वो इलेक्ट्रॉन की जो या जो भी डिफेक्ट आ रहा है रदरफोर्ड के मॉडल में वो इसको एक्सप्लेन कर सके। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बोहर, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. That was the main theme of the theory. That is the main thing in the theory, that he said that revolving an electron
in an atom does not absorb or emit energy continuously, कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो continuously फॉर्म में एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। उसके मुताबिक क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि वो एक फिक्स एनर्जी के शेल में विद द फिक्स्ड एनर्जी रिवॉल्व कर रहा है। इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखें, सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वहाँ पे जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्वांटाइज्ड एनर्जी का क्या मतलब है कि जिस शेल के अंदर वो मूव कर रहा है उस शेल की एनर्जी भी फिक्स है और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी फिक्स आ रही है। ठीक है, इस वजह से ना ही कोई वहाँ पे इमिशन हो रही है ना ही कोई एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। अच्छा, अब एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब वो कब करेगा? चूँकि मैंने आपको बताया कि हर एक जो शेल आ रहा है उसकी जो एनर्जी आ रही है, अब आप यहाँ पे देखें आपको ये शेल्स दिखाए हुए हैं। अच्छा, शेल्स जो हैं वो 4 शेल्स आ रहे हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। नंबर ऑफ शेल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन मीन्स उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो मैनी मोर आर देयर जी। सो हेयर यू कैन सी कि जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अपने शेल के अंदर आ रहा है, वहीं पे वो रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब इसमें आप देखें दे हैव शोन यू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट। एनर्जी शेल भी इसको कह सकते हैं आप और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। शेल्स भी आप देख सकते हैं, दैट इज देयर इज द के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल इज देयर, एन शेल इज द लास्ट शेल। अच्छा, मोर द न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द you can say nucleus, more its energy will be। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से फर्स्ट एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड टू द सेकेंड में जंप करेगा, क्योंकि अब वो पहले वाला जब वो न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी क्या है, कम। अब वो कहाँ पे जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो इस केस में वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब वो मूव कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द नेक्स्ट शेल, और यू कैन से फ्रॉम द लो एनर्जी लेवल टू द हाई एनर्जी लेवल जा रहा है, तो उसको वहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, इन द नेक्स्ट। और अब वो इमिट कब करेगा, इमिट वो तब करेगा जब, जैसे कंसिडर करें फ्रॉम द फोर्थ शेल इट इज़ कमिंग इन टू द थर्ड शेल। फोर्थ वाले से वो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड शेल से वो आ रहा है, तो जब 4 से वो थर्ड में आया, क्योंकि 4 वाला एनर्जी लेवल हाई है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो किस में आ रहा है, थर्ड वाले में, जिसकी एनर्जी लेवल क्या है, कम है। तो जब वो कम वाले में आ रहा है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा। ठीक है, सो अब आप उनकी जो एनर्जी होगी उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक फ्रॉम द, इफ इट इज़ मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट वन इनटू द सेकंड वन, तो सेकंड वन की एनर्जी E2 माइनस E1, इस तरह से आप इसको शो करेंगे एंड दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द डेल्टा E। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो ऑर्बिट्स हैं या जो एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, हमने मोस्टली ये देखा है कि उनकी जो शेप आपको दिखाई जाती है डायग्रामेटिकली, वी कंसिडर दैट दे आर राउंड और दे आर सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, बट दे आर नॉट सर्कुलर, दे आर ओवल इन शेप। ठीक है, मतलब आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर शोइंग यू, द येलो कलर इज द प्रोटॉन and the orange one are the neutrons are there, and then you can see there these are the oval shape orbits are there, and these oval shape orbits are in these orbits electrons are revolving। okay, then अच्छा, बोहर ने जो मॉडल एटम आपने दिया था उसने हाइड्रोजन का यूज़ किया था, उसमें उसने सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन कर दिया था। सो हेयर अगेन वी आर शोइंग यू द शेल्स, हेयर आर देयर जी, द ब्लू वन इज शोइंग यू द फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले को हम लोग के कहेंगे, सेकंड वाले को एल, देन एम, देन एन, 4 शेल्स बेसिकली प्रपोज किए गए हुए। ओके, सो डेल्टा ई विल बी रिप्रेजेंटेड एज E2 माइनस E1, और E आपको पता है किसके इक्वल है जी, आपने पीछे भी पढ़ा, H न्यू के इक्वल है। अच्छा, एक और इसका जो पास्टुलेट था, अब वो हमने ये पढ़ा कि वो एक स्पेसिफिक एनर्जी शेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, उस शेल की एक और कंडीशन भी है। वो कंडीशन जो है वो ये कंडीशन है कि उसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम उस शेल का फिक्स होगा।
एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर होती है जी, MVR के, डेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप वैसे जनरली बात करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग सर्कुलर एंगुलर की बात करें तो उसमें रेडियस भी आ जाएगा। सो M इज शोइंग यू द मास, V is showing you the velocity, and R is showing you the radius, and it is equals to NH over 2 pi. N showing you the number of shell number, H is a Planck constant, 2 is also a fixed number, and pi its value you know that is 3.14. So is that clear till here? Fixed angular momentum आ रहा जी, which is MVR, which is equals to NH over 2 pi. So एक इसने प्रपोज किया था मैक्स प्लैंक के 4 मेन पोस्टुलेट आ रहे हैं. द फर्स्ट वन इज he proposed the structure of hydrogen. Many more atoms he proposed, but the first that he used as model that was the atom of hydrogen. Then उसने ये बताया था कि quantized energy हो रही है, मतलब each electron or the is revolving in a fixed energy level in a fixed energy shell, और उसकी अपनी जो एनर्जी है वो भी quantized है. सेकेंड, इमिशन ऑफ एनर्जी जो हो रही है, रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है, वो कब हो रही है, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम द लोअर वन टू द हायर वन. इसमें आपको एक और बात बताई गई थी कि जो न्यूक्लियस से जितना शेल दूर आ रहा है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आ रही है. मीन द लास्ट शेल हैव द मोर एनर्जी एंड द शेल विच इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस इट हैज़ लेस एनर्जी. ओके, सो जब वो हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो, और जब वो लो से हाई में जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, एंड अकॉर्डिंग टू द शेल नंबर इट विल बी E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, whatever shell you are taking G. Now here these are the main three scientists who proposed the structure related to the atom. So the first one is the Rutherford, next one is a Bohr, and the last one is a Max Planck. रदरफोर्ड ने सबसे पहला एक अपना स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, अबाउट द स्ट्रक्चर मॉडल अपना दिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा रेज, जिसमें उसने बताया था कि न्यूक्लियस होता है और उसके साइड पे एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन देयर वाज मैक्स प्लैंक की थ्योरी आई थी, दैट वाज प्रपोज इन 1900. देन इन 1913 बोहर प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी. सो अच्छा, डिफरेंस क्या आ जाता है अब दोनों थ्योरीज के अंदर. रदरफोर्ड की थ्योरी है जो आपके पास आ रही है, और उसके अलावा जो उसकी थ्योरी आ रही है बोहर की. रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी दैट वाज क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, एंड बोहर ने जो थ्योरी प्रपोज किया दैट वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी. मैक्स प्लैंक की थ्योरी के ऊपर वो बेस कर रही थी, ठीक है. उसके बाद इसमें जो सेकंड मेन डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि उसमें रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब वो बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो जिस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक एनर्जी है, और स्पेसिफिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी फिक्स है, उसकी भी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है. सेकंड ये है कि उसने कोई ऑर्बिट का ऐसा आइडिया नहीं था दिया, उसने बस यही कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा था कि वो ऑर्बिट में कर रहे हैं या कहाँ पे भी कर रहे हैं व्हाटएवर. लेकिन इसने जो बोहर ने था उसने वो स्पेसिफिकली उसको एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं. फिर दूसरी बात इसने ये भी बताई थी कि उनका एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होता है. उसने कहा था कि जो रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि स्ट्रक्चर जो एटम का वो क्लास कर जाते हैं, लेकिन मैक्स जो बोहर है, बोहर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर एटम का वो स्टेबल था, एटम शुड एग्जिस्ट. ओके जी, एक और बात आपको बताती चलूँ कि 1918 में मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है. नोबेल प्राइज़ उसको मिला था जी टू द जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक, और उसके किस बेस पे उसको मिला था जी, उसको वो क्वांटम थ्योरी की ही बेस पे मिला था. रदरफोर्ड जो आ रहा है, रदरफोर्ड एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट था. उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन द एटम, और इसको भी 1911 में मिला था जी नोबेल प्राइज़ 1911 में. और मैक्स उसके बाद जो आ जाता है नील बोहर. नील बोहर, आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, वो ये है कि ये डैनिश फिजिसिस्ट था जिसने रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था 1912 में,
एज आ ऑन द पोस्ट ऑफ डॉक्टरल रिसर्च पेपर। लेकिन 1913 में इसने अपना एक मॉडल प्रपोज कर दिया था, थेरी अपनी दी थी जो कि क्वांटम थेरी के ऊपर बेस कर रही थी, और इसको भी 1922 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन atom. So these are all are the great scientists who which lead us toward the more detailed structure of the atom. So thank you so much. लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू. दैट्स ऑल.